সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশ উত্তপ্ত। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু এখনো স্বাভাবিক হয়নি প্রতিবেশী দেশটি। বাংলাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা একেবারে স্তব্ধ। অনলাইনে সেখানকার খবর আপনারা কিছুই জানতে পারবেন না। তবে ওই এলাকার খবর, খবরের কাগজে যে খবর ছাপা হচ্ছে না, যে খবর অনলাইনে মানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমরা পাচ্ছি না, সেই খবর আমরা সীমান্ত এলাকায় গিয়ে খোঁজার চেষ্টা করলাম, জানার চেষ্টা করলাম। আজ তাক বাংলা পৌঁছে গিয়েছিল পেট্রাপোল বেনাপোল সীমান্তে, এবং সেই সীমান্তে মানে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার বা যে সীমান্ত, সেই সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে কি ঘটছে, কি আসল ছবি, সেই সমস্ত সব ছবি, সেই সমস্ত সব খবর আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। অশান্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ায় বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ ছিল। ভরসা বলতে ভারতীয় পড়ুয়াদের একটাই সম্বল, তা ইন্টারন্যাশনাল কল রিচার্জ। কিন্তু খারাপ সিগন্যাল থাকার জন্য তাও মাঝে মাঝেই কেটে যেত। পেট্রাপোল বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়ারা। পেট্রাপোল বেনাপোল সীমান্তে আমাদের প্রতিনিধি সেই সমস্ত ছাত্রদের থেকে শুনলেন বাংলাদেশের এই মুহূর্তের একদম টাটকা তাজা আপডেট। এই সব ছাত্রদেরকে বিহার, কেউ বা গুজরাটের, কেউ বা কাশ্মীর, কেউ বা আবার নেপালের বাসিন্দা এই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে ভারতে প্রবেশ করে অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছেন এই সব ছাত্রছাত্রীরা। বাংলাদেশে ভারতের তুলনায় ডাক্তারি পড়ার খরচ অনেকটাই কম, তাই ভারত থেকে প্রতি বছরই বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজগুলিতে ডাক্তারি পড়তে যান প্রচুর ছাত্রছাত্রী। বাংলাদেশের খুলনায় ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন এই সব ছাত্রছাত্রীরা। ভারতে প্রবেশ করার পর বিএসএফ এই সব ভারতীয় পড়ুয়াদের পাসপোর্ট জমা নিয়ে ক্যাম্পে তাদের বসিয়ে রাখে। তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়। এতদিন বাড়ির লোকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং তার জেরে চিন্তায় ছিলেন তারা। বাড়িতেও উদ্বেগ বাড়ছিল বাবা মায়ের, তারাও সন্তানদের জন্য চিন্তা করছিলেন। এবার ভারতে প্রবেশ করে অনেকটাই নিশ্চিন্ত বোধ করছেন সবাই। আসুন শুনবো তারা ঠিক কি জানালেন। ডাক্তারি পড়ুয়া এরকমই বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, শোনাই তাদের বক্তব্য এক এক করে। अभी तो सिचुएशन अच्छा है और अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। बट हम थोड़ा डर रहे थे, इसकी वजह से हमको निकाल दिया वहाँ से, बांग्लादेश से, और भी सिक्योरिटी के साथ निकले हम। ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। अब इंशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर ये सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ क्या कहाँ पे थे, किसकी पढ़ाई कर रहे थे? हम वहाँ पे करते हैं MBBS की अद्दीन हकीस मेडिकल कॉलेज खुलना के अंदर। तो यहाँ पे भारतीय दूतावास से संपर्क किया, फिर आप लोग आए, किस तरह से आए? हाँ, हमने भारतीय से करा था, MBC इंडिया से, तो उन्होंने सपोर्ट किया हमको और यहाँ से हम कांटेक्ट से आ गए हम। तो घर में कोई संपर्क हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ इंटरनेट वगैरह तो सब बंद पड़ा हुआ है? नहीं, हमारा 4 दिन से संपर्क ही नहीं हो रहा था घर से, तो प्रॉब्लम भी बहुत आया हमको। नेट भी नहीं था 4 दिन से, जिसकी वजह से हमको बहुत समस्या आई। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? हम यहाँ से 3 साल से कर रहे हैं पढ़ाई। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई? नहीं नहीं पहला बार ऐसा है? जी। डर लग रहा था? जी, डर डर तो लग रहा था। काफी वायलेंस हुआ है? हाँ, पेरेंट्स सब लोग बहुत डर रहे थे ये सब कुछ सिचुएशन देख। मैं कश्मीर से हूँ तो आपको घर से संपर्क अब हो पाया है? जी। इंटरनेशनल कॉल तो हो पा रहा है, लेकिन क्लियर बात नहीं हो पा रही थी। घर वाले भी घबरा रहे थे, तो उन्होंने कहा जितना जल्दी आप निकल सकते हो तो आप निकल जाओ वहाँ से। सिचुएशन तो खुलना की वैसे नॉर्मली थी, ढाका में तो ज़्यादा टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा कि अब बात भी नहीं हो पा रही है और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा अच्छी बात यही है कि हम घर ही चले जाएं। तो यहाँ पर जब आए, सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ लाया गया, कैसे लाया गया? हमने इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में थे हम, उन्होंने हमें विद सिक्योरिटी यहाँ तक भेज दिया, बस बाय बस। जी। रास्ते में क्या कहीं रोकने की कोशिश हुई, एजिटेशन वगैरह? नहीं, वैसे तो हमको एजिटेशन नहीं मिली, लेकिन रास्ते बंद थे, पुलिस ने सब रास्ते बंद किए थे और हमारे लिए सिक्योरिटी जो सामने थी तो वो क्लियर करा रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ लग रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में सुकून है अभी। लेकिन वहाँ क्या परिस्थिति, बहुत परेशानी हो गई थी, घर में वहाँ बहुत पे चिंता तो हो रही ये था, एक तो नेटवर्क नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो परेशानी ये हो रही थी, घर में कांटेक्ट नहीं कर सक रहे थे। 4 दिन से कुछ कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इसीलिए परेशानी हो रही थी जी।
अभी खाना पीना सब ठीक से मिला है या वहाँ भी प्रॉब्लम? खाने की तो टेंशन नहीं थी, बस इतना था, सब लॉकडाउन का हाल था वहाँ पे भी, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, पर घर में कुछ बात नहीं कर सक रहे। 4 दिन से तो कुछ बात नहीं हुई थी, बस इंटरनेशनल रिचार्ज कर रहे थे, पर तो भी सिग्नल्स कम कम आ रहे थे और परेशानी ये हो रही थी। ভারতীয় পড়ুয়াদের কি বিভীষিকাময় দিন কেটেছিল সেটাই আমাদের প্রতিনিধির সামনে আজ তাক বাংলার সামনে তুলে ধরছিলেন তারা। এরকমই একজন ডাক্তারি পড়ুয়া বলছেন যে কারফিউ ছিল, গাড়ি চলছিল না, কলেজ তো বন্ধই ছিল, দোকানপাট সব বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি বলছেন যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি আবারও বাংলাদেশে ফিরবেন। শুনুন তার কথা। আরো বেশ কয়েকজন পড়ুয়া যারা বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন তাদের কথাও শুনুন। कर्फ्यू लगा हुआ था, बिल्कुल ट्रैफिक ऑफ था, कोई गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी, रिस्ट्रिक्टेड थे, दुकानें वगैरह भी बंद थी, तो इस सब के चलते हुए कॉलेजेस वगैरह भी तो बंद ही थे, तो हमने सोचा बेहतर वापस ही आना है। तो अभी पढ़ाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या उसके बारे में? इंशाल्लाह हालात वहाँ ठीक होंगे तो विल रिटर्न बैक। यस। आप नेपाल से हैं? हाँ सर, नेपाल से हूँ। आप क्या स्थिति वहाँ देखे, क्या हालात? आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम विमल राज भंडारी हुआ। मैं नेपाल से हेटोरा मकवानपुर का रहने वाला हूँ। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हालात बहुत बुरा हो गया था। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन और प्रेसिडेंट के बीच में वो क्या इसी एजेंडा के लेके कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस कारण से हालात बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग के घर से कांटेक्ट ना होने के कारण से, वहाँ वाईफाई की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण से हम लोग थोड़ा पैनिक हो गए थे। इसी कारण हम अपने देश जाकर पेरेंट्स को और हमारे तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देश जाकर उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात हो चुकी है आपकी घर में? हाँ, अब बात हो चुकी है। अब ठीक लग रहा है, सेफ लग रहा है? हाँ, अब सेफ लग रहा है। अभी थोड़ा सेफ महसूस कर रही है? हाँ, अभी बॉर्डर जैसे क्रॉस किया हमने तो हमें सेफ फील हो रहा है। हम सभी लोगों को, हम सब एक साथ ही रहते थे तो फिर हमें अभी अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? हाँ, हम सभी मेडिकल ही स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके। तो कितने सालों से वहाँ? दो या 3 साल? नहीं, मैं अभी मेरा फर्स्ट ईयर है और लोगों का हमारे सीनियर्स हैं जो 5th ईयर, 4th ईयर ऐसे हैं। तो वहाँ क्या बांग्लादेश में जो मेडिकल की पढ़ाई है थोड़ी सस्ती है? हाँ, इंडिया के अगर कंपेयर किया जाए तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, यहाँ ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज का, तो इसीलिए हम लोग ने वहाँ सजेस्ट किया कि हाँ जो संभव। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের মতামত জানান। দেখতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলা, ফলো করুন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।